My signal. Is this better? Or is this better? Good, sir. Okay, A little bit. Can you turn up your volume, please? sure. Is that fine now, ma'am? Yes, it's fine. All right, good to know. Okay, so good evening, everyone. Let's get a show of hands. How many of us are musicians and how many of us are non-musician producers? And by that I mean people who are not formally trained in music but are wanting to become producers. You could just raise your hand so I have a good idea of what the... So if you're a musician, raise your hand. If you're trained... Okay. Anyone from my class over here? Yes, sir. Hi, Abhishek. What's up? Good, sir. Good to see you here. Yes. Okay, so there are a few musicians, and okay, you can keep your hands down. Let's see if there are any DJs in the house. Again, I mean untrained people who are not trained musically but are DJs. Okay, I guess just a few of them. All right, that's great. So let's begin. I will request that each person ask a maximum of 2 questions because we want to give everyone a chance. Once we have gone through you, then we'll cycle back and we'll go with that. So I'm going to speak out your name. If you have a question, please ask. And if in case I speak out your name and if you had a question that had already been asked, feel free to ask another question. And remember, guys, there are no dumb questions. There are only dumb answers. So feel free to ask me anything and everything, and I shall answer it to the best of my ability. So first, we're going to ask someone who signed in using a number, which is 93061172883. I'm sorry if that's your mobile number and if I spoke it out loud. All right, let's hear your question. Yeah. Okay, I think 930 is not on the desk. The next one is Nandini Jha. Hi, Nandini. Do you have any questions? Do you have any kind of, doubts or anything? Am I audible to you guys? Can you guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah? Yes, sir. Okay, so moving on, Akash Roy. Hello, sir. Good evening. Good evening. How are you? I'm a music producer, music director, and beat maker. You can call me as a juicer, mixer, grinder. All right. Actually, my biggest issue in the music production is I make music. Okay. Okay, I make music on my own beat. I can mix very best. But whenever any customer comes to me and they say that I have beat, but the beat on nothing, the biggest rule on music production is 6 dB is needed to be for Bollywood or any industry kind of, right? But the beat always on up of the 6 dB. So how can I mix on it? When you say 6 dB, are you talking about headroom? Yes, I'm talking about headroom. Because Okay. अगर कोई भी ऑफलाइन बीट होती है ना, तो हाँ जी। उसके अंदर हम लोग मिक्सिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मेरी कोई बीट होगी, Yeah. तो मैं उसको ठीक से उसको बैलेंस कर पाऊंगा और वोकल्स को उनके अंदर अच्छे से निखार Absolutely. पाऊंगा और अच्छे से मिक्स होगा. लेकिन वो होता ही नहीं, ऑफलाइन बीट के ऊपर कैसे कर पाएंगे? I can't understand. So you're telling me that when clients come to you, they give you a beat which only has minus 6 dB of headroom, or it doesn't have any headroom? No, they have the upper of 6 dB. It's more than 6 dB. You're saying it's above 0 dB, 6 dB above 0? हाँ.
That is wrong. You can literally tell them that this is not the standard. You have to deliver a beat that is at minus 12 dB FS. That's full scale. That's digital dB. Okay. You can tell them that I need the beat at minus 12 dB. If that's not possible, at least minus 6. You have to deliver the beat at that, and the recording also has to be at a minus 12 or a minus 6. If you are able to give me these signals and deliver them at these dB levels, then and only then will I be able to do anything further with it. You can actually tell them that this is a technical requirement. Without this, you cannot move forward. Okay. And you have told us that only 2 questions. And the second question is that is external plugins and stock plugins, is that real myth that external plugins can give us professional things and the internal plugin can't give us professional thing? Is that myth or real? So when you say external plugins, I assume you mean external hardware. External plugins, hardware, whatever. Plugin will always be a software. So that's wrong terminology. Now, when it comes to hardware, Akash, I would like to tell you that there are still some kind of hardware that you cannot really compare to. Okay. Now, when it comes to reverbs, the industry standard a few years back was the Lexicon PCM 9296. And I have one at the studio, and I have never used it. Because these days the reverbs that I get in the plugins, Valhalla and Fab Filter, the ones that I get with Slate, they are just so much more superior than using the PCM, the Lexicon PCM. Whereas on the other hand, when it comes to, say for example, compression or saturation or using a tube EQ, that is still unbeaten. But having said that, never let that stop you. Just because you don't have a tube EQ does not mean you should hold on making a song because you feel that this is my favorite song and this deserves the best of hardware. Hence, I will not work on this till I get my hands on this tube EQ. Don't ever do that. Okay. Because you will not improve unless you release a song. And when you improve and when you release a song is when you improve, is when you will realize that, you know what, instead of tube, I could have actually used something else. Because using these toys or using these things is not going to make your sound better, is not going to make your song better. You are going to make your song better. You as an artist need to improve, not your equipment. Okay. You as a musician, you as a music writer need to improve your skills. These are just added benefits. The song must sound great with or without them. If that is the case, then you will be a successful musician. But if you are banking your entire hopes and dreams on the fact that yaar, jab tak UAD nahi aayega haath mein, I won't be able to do anything, is not fair. Not fair to yourself. You're being too hard on yourself. Okay, because this question has come to on my mind by own. Because I have used every plugin, I have used every DAWs from you can call me every plugin user, every DAWs user. I have used AutoTune, I have used FL Studio, I have used Ableton, I have used Logic Pro. Even I have changed my Windows to Apple from this myth. That does not make a difference. I have always been working on Windows. Apple is not better than Windows. Windows is not better than Apple. It's basically what you prefer. If you prefer Windows, work on Windows. If you prefer Apple, work on Apple. So I'm the right way. Thank you, sir. Most welcome. All right, moving on. Next person is Pallavi's phone. Hi, Pallavi. Sir. Hi, sir. Hi. My question is, before joining any music production course, do we must learn to play any musical instrument like guitar or keyboard? No, not necessary. Actually, not necessary at all. But you do need to have a little bit of theoretical knowledge. So it's not like it is absolutely necessary. It does help, definitely. If you know a little bit of keyboard or a little bit of guitar, and I'm not saying, play really complicated stuff, but enough that you can at least play chords does help. Even if you don't know that, don't worry about it. But knowledge of music theory is a little bit of a must. And that also, you can actually learn while you're learning production. So you don't have to learn music theory before. A lot of the music theory courses offer a lot of the music production courses offer theory as a part of their module, right? So choose a music production course that is offering a little module in the middle, like a week of music theory, and that should be more than enough, right? It's important that you know at least the fundamentals of music theory. Other than that, the skill on an instrument
is something that is an advantage, yes, but not a necessity. You can still make amazing music without knowing how to play even a single instrument. And I know so many people who are not musicians or great musicians, or are just very simple musicians with simple abilities, just enough to get them by, and they are amazing music producers. So don't let that stop you. And as a beginner, what you suggest, sir, which DAW I should use? I mean, if I join any course. As a beginner, as a professional, as an intermediate, at any level, I will always suggest Ableton Live because of multiple reasons. Ableton Live is a very user-friendly software. It is available both on Apple and Windows. So if you're on either, it'll work. A majority of the world is using Ableton Live. So sharing projects becomes very easy. And tomorrow, even if you do plan to change your entire ecosystem, digital ecosystem from, say, Windows to Apple and then back to Windows, you don't have to worry about learning a brand new software. Let's say, for example, you learn on Logic, but then later on you realize that I need a very powerful machine, and that can only happen on a Windows. In that case, you're stuck. You're going to have to work with Apple for the rest of your life, or in the middle of your career, start learning how to use either Ableton or Pro Tools or any Windows supported DAW. Whereas Ableton is one of those rare things that works on both. I'll give you an example of other DAWs. Pro Tools is one, but mind you, Pro Tools is extremely professional and has a very steep learning curve. Will expect you to learn not just music production, but a lot of audio engineering as well. So music, and as long as you have a diploma, it's fine. But if you are just only doing a music production diploma course, a short course, Ableton Live is hands down the best option. It trumps everything in the market right now. And, well, it's made by the Germans, so you can't go wrong over there. Thank you, sir. Most welcome. Our next person is Dr. Sushil Deshmukh. Hi, sir. Good evening. Good evening, sir. Actually, I make music on GarageBand only and on iPad. Okay. So, wanted to move to PC thing and more professional things. So, what would you suggest? Is it like a Logic Pro would be more better option for a GarageBand user, or to go to Ableton Live? See, I will suggest you start on Ableton Live because of the multiple advantages that it has. Also, it is much more lighter on the system than Logic. Logic is very CPU intensive. Okay. And Ableton Live is light on the CPU, and it's easier to grasp for a beginner. And at the same time, Ableton also has features and options that are very useful for an advanced level professional. It has something called Max for Live, which allows you to design your own plugins. So it's great for beginners and it's great for advanced also. Once you've reached an intermediate position, once you've spent 3 to 4 years on Ableton, you will realize that moving to Logic is not very difficult. At the end of the day, it's more or less the same. When you have spent enough time on one DAW, switching to another DAW is not very difficult. And again, I will always recommend that you do put yourself in a platform which can be on any OS, whether it be Windows or Mac OS. Tomorrow, let's say you want to buy an Alienware and you want to work on Windows, you should have that option. Okay. But I'm more into in that GarageBand, so that's all right. GarageBand workflow is completely different. GarageBand workflow is so unique because GarageBand was made for people who just have no idea of audio engineering. Okay. Right. So their entire way of working in the workflow is very, very different. So don't worry about it. Even if you go to Cubase after GarageBand, it's still going to be the same amount of hard work that it would be towards Logic. So don't worry about that. Is it possible to move these projects to Ableton Live or Logic? It is not possible to move GarageBand projects to anything. GarageBand has a proprietary project and file-based system, which for some reason only works on GarageBand. In my honest opinion, I think GarageBand is in some ways a little more complicated than some of these professional softwares. I don't know why and what Apple thinks when they design all this. Nothing against them, but GarageBand is somewhat counterintuitive in some areas. Okay, thanks a lot, sir. Most welcome. All right, moving on to Devyani. Hi. Okay, doesn't look like she's here. Rahul,
Okay. Nitin dude. सर माय क्वेश्चन इज कि मैं YouTube से सीखा जा सकता है क्या म्यूजिक प्रोडक्शन टोटली, या इज इट नेसेसरी टू जॉइन एक बार फिर से बताइए, एक मिनट, और कोर्स? एक बार फिर से बताइए, आपकी आवाज कट रही है। हाँ हेलो हाँ सर, जी, मैं अब कह रहा था कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए YouTube से सीखना पॉसिबल है क्या, या कोई इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना पड़ेगा सीखने के लिए? देखिए, पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए आई थिंक एक इंस्टीट्यूट या एक छोटा सा कोर्स करना अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, एक सेल्फ लर्निंग होती है। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये फील्ड इतनी ज़्यादा वास्ट और इतनी ज़्यादा एवर लर्निंग है, मतलब आप कभी भी सीखना बंद नहीं करते। आज भी 15 साल के बाद मैं आज भी कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। एंड वो मैं इसलिए सीख पाता हूँ क्योंकि मैंने एक सही तौर पे, सही तरीके से मैंने चीज़ें सीखी थी, क्योंकि मैं एक कॉलेज में गया था पढ़ने। पर आप ये एक छोटे से ऑनलाइन कोर्स से भी कर सकते हो, या छोटे से किसी इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है पूरा डिप्लोमा या डिग्री करना है आपको। पर हाँ, पहले स्टेप्स अगर आप करेंगे तो आपको एक सही ऑर्डर में चीज़ें सिखाई जाएंगी। जब आपकी फाउंडेशन प्रॉपर स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद आप अपना स्पेशलाइज किस में करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग में या प्रोडक्शन में या डीजेइंग में, जिसमें भी आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर आप आगे यूट्यूब पे सीख सकते हैं। और सर एक और प्रॉब्लम थी कि जो भी देख रहा हूँ मैं, कोई भी ट्यूटोरियल सिखाता है कोर्स में भी, वो प्रोडक्शन पे मेन ध्यान देते हैं बजाय बीट मेकिंग के या म्यूजिक के मिक्स। देखिए, बीट मेकिंग और प्रोडक्शन सेम चीज़ होती है, बस कंफ्यूजन मैं बताता हूँ कहाँ है। बीट मेकिंग लोग कहते हैं जब आप किसी प्रोड्यूसर को, जब कोई प्रोड्यूसर हिप हॉप के लिए बीट बनाता है तो उसे बीट मेकर कहते हैं। टेक्निकली वो अभी भी प्रोड्यूसर ही है, ठीक है? तो वो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर ही होता है, बट हिप हॉप या रैप बीट मेकर्स को बीट मेकर्स कह देते हैं। तो बीट मेकिंग और प्रोडक्शन सेम होती है। तो अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप स्पेसिफिकली म्यूजिक प्रोडक्शन फॉर हिप हॉप या रैप म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए सर्च करें। सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन में मत सर्च करें अगर आप बीट मेकिंग सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप बीट मेकिंग सर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा वेग टर्मिनोलॉजी है ये, राइट? सर यूडेमी वगैरह से सीख सकता हूँ? उस पे भी तो कोर्स होते हैं। यूडेमी में आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। पर वही है, यूडेमी में सब कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, आप टीचर से बात नहीं कर पाएंगे। जैसे फ्रंट रो में जस्ट मेरा एक कोर्स है जिसमें मैं एक्चुअली लाइव आके सिखाता हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से उसी वक्त पूछ सकते हैं। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर पहले कम से कम जो बेसिक्स हैं आपके, वो आप ऐसी जगह से करें जहाँ पे आप टीचर से अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ, तो उसके बाद फिर सेल्फ लर्निंग में आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, सुनंदा। हेलो। यस सर। हाँ जी, पूछिए आपका क्वेश्चन। सर एक्चुअली मुझे कोई एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है, एंड नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन समवेयर, एंड आई एम लुकिंग फॉर, मतलब अभी राइट नाउ मुझे, मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मैं एक एस्टेब्लिश्ड कैरियर बने मेरा म्यूजिक में। अगर म्यूजिक में हूँ तो उसमें एक एस्टेब्लिश्ड स्टूडियो इंजीनियरिंग और समथिंग, मतलब ऐसा हो कि उसके बाद मुझे ये सोचना ना पड़े कि ओके आफ्टर दैट आई हैव टू थिंक ऑफ मनी एंड ऑल, राइट? तो वैसा कोई कोर्स कि उसके लिए मुझे कैसा, मतलब कौन सी कोर्स बेटर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन आर्टिस्ट, also I have been a performer, and now I just थोड़ा पोजीशन किया है मैंने, करती हूँ, और but I have idea about various kind of music, and I want to learn about जैसे कि elements of music and जो different distinct जो thing है, variants जो है, उसको मुझे सीखना है। और and I want to establish a अपना कोई स्टूडियो हो, वैसा कुछ करना चाहती हूँ। ओके, देखिए, आई मीन इट इज़ नो, छुपी हुई बात नहीं है कि ये फील्ड थोड़ी सी इसमें अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इवन इस फील्ड की एजुकेशन
थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे आती है जब आप इसको रेगुलर एजुकेशन से कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप डीयू में या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर कोई नॉर्मल कॉलेज कोर्स करना चाहे, इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह, अगर आप उसकी फ़ीस ऐसे कंपेयर करेंगे तो उसकी फ़ीस कहीं ज़्यादा होती है. तो अगर आप इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा या डिग्री लेना चाहते हैं, इट वुड बी अ गुड थिंग कि अगर आप उसकी फ़ीस को एज अ बिजनेस एक्सपेंस लेके चलें. सेकेंडली, आई वुड सजेस्ट कि आप इसके अंदर एक ऑडियो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है 1 साल का. अगर आप इसके अंदर सीरियसली जॉब लेना चाहते हैं, बाय जॉब आई मीन कि ये आपका मेन लाइवलीहुड हो और ये आपका हॉबी नहीं है, या आप जैसे आपने कहा कि आप स्टूडियो बनाना चाहते हैं, स्टूडियो में जॉब करना चाहते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे स्टूडियो में कोई जॉब मांगने आता है तो ऑब्वियसली उनका ऑडियो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना ज़रूरी है. तो आप 1 साल का ऑडियो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं. उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा कि बॉम्बे या तमिलनाडु शिफ्ट होके, या दिल्ली गुड़गांव में ऑल दो स्टूडियोज़ बहुत कम है जो ये ऑफर कर पाएंगे आपको. बॉम्बे या तमिलनाडु शिफ्ट करके, चेन्नई शिफ्ट करके आप किसी एक अच्छे स्टूडियो में इंटर्नशिप करें. 1 साल तक आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिल जाएगा, बट 1 साल तक आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी. बट वहाँ रह के आप बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर पाएंगे, एंड उसके आगे फिर यहाँ आप किसी स्टूडियो में जॉब ले पाएंगे, या आप अपने होम टाउन में आके अपना स्टूडियो बना सकते हैं. अगेन, स्टूडियो बनाना छोटा काम नहीं है, बहुत साल लग जाते हैं, और पहला स्टूडियो कभी भी अच्छा नहीं होता. हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा स्टूडियो जब तक बनाए ना कोई, तब तक स्टूडियो में परफेक्शन नहीं आती है. तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, बट अ स्टार्टिंग पॉइंट इज़ कि आप कम से कम एक डिप्लोमा करिए और इंटर्नशिप करिए. आप जैसे ही इंटर्नशिप करने लगेंगे, आप इस इंडस्ट्री में दोनों पैर लेके आ गए हैं. इंटर्नशिप में ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, और आपका स्पेशलाइजेशन, मतलब आप कहाँ क्या काम करना चाहते हैं. क्योंकि स्टूडियो में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती हैं. टेक्निकल इंजीनियर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, मिक्सिंग इंजीनियर, माइकिंग इंजीनियर, या मैनेजरियल पोजीशन. इनमें से आपको क्या ज़्यादा सूट करता है, वो फिर आप अपनी डिसीजन ले पाएंगे उसके हिसाब से. उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं. वो आपको भी पता भी नहीं चलेगा, और आपको मतलब इतने से अगर मैं पूरा 1 घंटा आप ही का सवाल का जवाब दूं तब भी नहीं आपको पता लगेगा. वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इंटर्नशिप करने जाएंगे, किसी स्टूडियो में काम करेंगे. आपको 1 या 2 महीने के अंदर काम करके थोड़ा सा आइडिया मिलेगा. उसके बाद आप जब तीसरे महीने में पहुंचेंगे, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है. तो घबराइए मत, अगर करना है, अगर आना है, तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये काम जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है. इसको करके बहुत मज़ा आता है, और कभी भी आप मतलब बोर नहीं होते. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आज काम पे जाने का मन नहीं कर रहा. एवरी डे इज़ अ न्यू डे. हर दिन आप एक नए आर्टिस्ट से मिलेंगे, हर दिन आप एक नया गाना बनाएंगे, हर दिन एक नया गाना बनेगा. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी मोटिवेटिंग फील्ड ऑफ लाइन ऑफ वर्क. बट एट द सेम टाइम थोड़ा मेहनत लगेगा, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए. हेलो, One second. One second, please. We're still answering Sunanda. Hi, Sunanda. Any other question? Is that कि सर उसके बाद कैसे होगा फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है ना, जैसे कि मैं अपने होम टाउन में हूँ, या Okay, looks like we've lost Sunanda. तो वहाँ पे मतलब फाइनेंस No, Sunanda, आपका कनेक्शन बहुत वीक आ रहा है. बिल्कुल आवाज कट के आ रही है. आप अपना क्वेश्चन प्लीज चैट में लिख दीजिए. Sure. Yeah. And how much does it cost, sir? वो कोर्स कितना कॉस्ट होगा? देखिए, डिप्लोमा का कोर्स मोस्टली आई थिंक 1.5 से 5-6 लाख तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं आप. तो उसके हिसाब से होगा. बाकी अगर आप कहीं और किसी और सिटी में भी जाएंगे तो आपको लिविंग एक्सपेंस भी देखना पड़ेगा. Okay, sir. I'll talk to you. Sure. I will talk to you regarding. Sure. Okay. Now we've got DJ Snake. हेलो. हाँ जी, बताइए. हाँ जी सर, ये मैं ना एक्चुअली जॉब करता हूँ, तो साथ साथ में मुझे म्यूजिक का भी इंटरेस्ट है. तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी थोड़े टाइम पहले सीखना शुरू करा था. तो अब मैं पियानो मतलब अच्छे से प्ले कर लेता हूँ काफी. तो मतलब कोई भी गाना मैं सुन के बना लेता हूँ, और एबल्टन लाइव भी मैं चला लेता हूँ अच्छे से.
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि ऑडियो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी डिप्लोमा, तो अगर मैं, जैसे मेरी जॉब है वो मुंबई में ही है एक्चुअली, हाँ मैं जी। रहता वैसे पंजाब में हूँ पर ओके। जॉब मेरी मुंबई में ही है। तो ओके। अगर मैं थोड़े टाइम बाद मुंबई जैसे आऊंगा वहां पे, तो अगर मैं इंटर्नशिप करना चाहूँ किसी स्टूडियो में, तो क्या उसके मतलब डिप्लोमा के बिना नहीं हो सकता? देखिए, हो सकता है, एक दो बार मैंने भी बिना डिप्लोमा के लोगों को इंटर्नशिप दी है, बट आपको फिर आपका अपना स्किल, सेल्फ लर्न स्किल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप जब अपना पोर्टफोलियो भेजेंगे, जब आप अपने गाने भेजेंगे, वो एकदम प्रोफेशनल लेवल के होने चाहिए। आप इंटरव्यू में जब जाएंगे, आपसे जो सवाल पूछेंगे, अगर आप हर सवाल का जवाब दे देंगे कॉन्फिडेंटली, तो आई डोंट थिंक वो डिप्लोमा इतना ज़रूरी होता है। बट ऑब्वियसली मोस्ट स्टूडियोज़ अगर डिप्लोमा है नहीं तो वो आपका मेल भी आगे नहीं पढ़ते हैं, तो डिप्लोमा होना थोड़ा सा ज़रूरी है। अच्छा, तो ये जो डिप्लोमा होता है ये मतलब ये रेगुलर बेस पे होता है? आई एम सॉरी, एक बार दोबारा पूछिए। ये डिप्लोमा जो है, मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब रेगुलर बेस पे ही होता है, मतलब रेगुलर क्लासेस ही होती हैं या ये इसमें वीकली वगैरह भी? नहीं नहीं, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस होती हैं, जैसे नॉर्मल कॉलेज होता है वैसे ही होता है, पर एक अच्छा साल का डिप्लोमा है। आपको हफ्ते में 5 बार जाना पड़ेगा, 4 से 6 घंटे का कॉलेज टाइम होगा। आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग से किया था, चेन्नई से। आप एक्सेस अटलांटिक से कर सकते हैं, या आप फ्रंट रो से कर सकते हैं। फ्रंट रो में इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं है आई थिंक, आप चेक कर लीजिए। बट एक चीज़ का ख्याल रखिए, म्यूज़िक प्रोडक्शन अलग चीज़ होती है और ऑडियो इंजीनियरिंग अलग चीज़ होती है। ये हाँ जी, दोनों वही बहुत अलग फील्ड्स हैं। वही मैं म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए कह रहा हूँ कि मतलब स्टूडियो में। देखिए, म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो जॉब नहीं देगा आपको, आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन का स्किल लेके स्टूडियो क्या करेगा? वो तो कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हायर कर सकता है। आपको परमानेंट हायर पर रखने की क्या ज़रूरत है? राइट। तो आपको इंजीनियरिंग ज़रूर आनी चाहिए, तभी आपको स्टूडियो में काम मिलेगा। अगर आपके पास इंजीनियरिंग स्किल नहीं है तो स्टूडियो में आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप फ्रीलांस कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप फ्रीलांस कर नहीं नहीं, सकते हो, म्यूजिक बना मैं सकते एज ए कह रहा हूँ कि मतलब चाहे कोई मुझे कोई वो ना मिले, पे ना मिले, एक तरीके से मैं इंटर्न कर सकूं, वैसे कह हो। रहा हूँ। देखिए, आप बेशक इंटर्नशिप करें या बेशक जॉब करें, एक बात मैं आपको सबको कहूंगा कि कभी भी बिना पे के काम मत करिए। देखिए, मेहनत मेहनत होती है। आपका जो भी स्किल है, जो भी लेवल है, आप बेशक 500 रुपए मांगिए, बट आपने कुछ तो मेहनत लगाई है ना, राइट? अगर आप फ्री में काम करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहली बात, आपको खुद को मोटिवेशन नहीं मिलती। दूसरी बात, आप इसमें फिर सीखने, मतलब आप एविडेंटली सबको बता रहे हैं कि मैं अपने मतलब से सीखने आ रहा हूं, भाई मेरे को तेरे से लेना देना नहीं है कुछ, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, विच इज़ नॉट अ गुड मैसेज। आपको हमेशा आके बोलना चाहिए कि हाँ जी, मैं सीखने आ रहा हूं आपसे, अपने लिए सीखने आ रहा हूं, पर जब तक मैं आपसे सीख रहा हूं मैं आपकी भी पूरी हेल्प करूंगा, राइट? सो एक पेमेंट लेने के सिर्फ ये नहीं है कि यार कुछ आता नहीं है आप पैसे मांग रहे हो, ऐसी बात नहीं होती है। अगर आप किसी स्टूडियो में जाके सिर्फ कॉफी भी पिलाने का काम कर रहे हो, कुछ तो काम कर रहे हो ना, राइट? तो ऐसे बिना पेमेंट के कभी भी काम मत ढूंढना, आपको कभी भी अच्छा काम नहीं मिलेगा, ना कोई अच्छा स्टूडियो आपको ऐसे बुलाएगा। आप इंटर्नशिप मांग रहे हैं, आपको एक ट्रैवल अलाउंस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और उसके बाद आप वहां से सीखिए आप क्या सीख सकते हैं। ओके। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अश्विन कुमावत। Okay. Sir, sorry to interrupt. Is there a sequence in which you're going, sir, for queries? Yeah, actually, I'm reading the names out on my Zoom as we go. Oh, okay, sir. So I joined a little late, sir. Sorry, my name is Samarth. I'll wait for my turn. Thank you. That's all right. Okay, we are waiting. Okay, that person I think left. Never mind. Well, for some reason, my next name is Samarth only. So, Samarth, why don't you go ahead and ask a question? Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I actually left. I was working in IT. I was passed out in 2016. I worked for a couple of years, but I had this passion. मैंने तबले से शुरू किया था सर पहले, from my 7th 8th grade, and then I went on to learn piano and guitar in college. Not to a great extent, but to considerable extent that I was able to make sense of things and I was able to play in a band. फिर मैंने काम छोड़ा. Actually, I left my IT job in 2018. I was working in Bangalore, so I
went to a studio called Beatworks. मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का बेसिक कोर्स किया वहाँ पे with Ableton. Then I ventured on my own to create and to मेरा पहले से focus background score पे था sir, for short films. I've done for 3-4 films now. Okay. But I could not support myself financially, sir, so I had to get a job back. मैंने audio production का diploma भी मैंने pursue करने की सोचा, पर हाँ जी. back I'm working now in again in IT, but I'm managing both simultaneously. So I am actually working on one short film project, background score now, and also a song. But मुझे sir, I've just learned in these bits and pieces. So for example, the mixing and audio post production जिसे हम कहते हैं, I always rely on one person locally here who has a studio, or somebody in Bangalore. I thought I'll but I want to know before I head out in that direction, sir. I'm basically a composer. मैंने mixing या mastering पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है पहले से. So I know that it is also a huge field. It is not something that I can, because I'm creating songs or doing some music, मैं mixing भी कर लूँ, mastering भी कर लूँ, इतना आसान तो है नहीं. I know that there are dedicated folks who has done that. But problem here is, sir, when I'm asking for money, most of my money is going for my mix and master engineer. तो मेरे लिए कुछ बच ही नहीं रहा है actually. देखिए Samarth, whenever you are hired as an artist, you can always divide your what you're charging. Okay. And I get this question a lot. A lot of people ask me that, man, everything that I'm earning eventually ends up getting spent in the making of the project. So what is it? And that's exactly one of the first few mistakes that people entering this industry make. You don't realize that you can actually demand a separate charge for technical services and a separate charge for creative services. So say, for example, I'm a musician and I have a band. My band is hired to make the theme song of, let's say the next Airtel theme song. Okay. Well, big dreams. Why not? So I'm hired by an ad agency. Let's say JWT hires me and they say, we want you to make a theme song. How much will you charge? So the way I will quote is, say, for example, I will say, I'm going to charge 2 lakhs plus production charges. Okay. And then they will ask, all right, so the production charges will be levied through you or will be directly charged to you? Or I can tell them that plus production charges directly charged to you. That means मैं जिस स्टूडियो में जाऊंगा वो बिल बनाएंगे, वो बिल सीधा आपके नाम का बनेगा. हाँ, right. वो आप उनको अपना charges देंगे. So the production charges or studio charges, you can even say studio charges separate. अगर आपको नहीं पता कि आप कौन से स्टूडियो में जाएंगे या अगर आपको लग रहा है कि जो आपको हायर कर रहा है उनका अपना भी स्टूडियो है, तो आप हमेशा बोल सकते हैं दैट माय आर्टिस्टिक फी और माय क्रिएटिव फी और माय कंपोजिशन फी इज सो एंड सो प्लस स्टूडियो चार्जेस. ठीक है. एंड नीचे आप एक फुटनोट डाल सकते हैं, स्टूडियो चार्जेस मोस्टली विल इंक्लूड एनी रिकॉर्डिंग इफ रिक्वायर्ड एंड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग चार्जेस विच ऑन एवरेज आर ₹15,000 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पे करते हैं. Right. So you can always mention that separately. And you can also say that if in case these charges are not suitable to you or the studio charge is not suitable to you, I'm more than happy to work with any vendor that is on your vendor list. Right. Okay. हर कंपनी की एक वेंडर लिस्ट होती है. मैं बहुत सारी कंपनीज का वेंडर लिस्ट हूँ. जब उनको किसी और आर्टिस्ट का प्राइस नहीं पसंद आता तो जब गाना बन जाता है वो फिर मिक्स मास्टर के लिए मेरे पास आ जाता है और आर्टिस्ट को पता भी नहीं है किसके पास जा रहा है, क्योंकि उसने जब म्यूजिक बना लिया खत्म बात, उसके बाद अब मेरा काम है. Right. So you can always charge that separately. That was a very good question. And this is something that a lot of people don't realize. Mixing and mastering is a very different profession. I myself, I'm primarily a mix engineer. Okay. Okay. My music production is my secondary skill. Okay. Right. I do produce music for a lot of things, for a lot of artists, for a lot of ads, but I, by profession and by, you can say, most of my income, I am a mix engineer first. And I am more known for my mixing engineering and my mastering than for anything else. But obviously, these are skills that you pick up on the way. I've been mixing and mastering for 15 years. I've been producing music for about 10 years, right? So obviously, I mean, you will learn things on the way, but I did not start off with both.
यू स्टार्टेड ऑफ विद म्यूजिक प्रोडक्शन विच इज ग्रेट. धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, आप खुद मिक्सिंग मास्टरिंग भी सीख जाएंगे, राइट? बट मिक्सिंग मास्टरिंग इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इट्स लाइक it is a very technical job. It's a very mathematical job. तो just like mathematics, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर हो जाएंगे. Correct. So going in that direction just because to save some bucks will not actually give me where there is a desired result, right, sir? Like if I'm, people say you just buy 2 monitors, place it, make your room caustically, treat your room, but ये सब देखिए वो तो obviously जरूरत तो है ही है. एंड अकूस्टिक ट्रीटमेंट से डरिए मत. अकूस्टिक ट्रीटमेंट महंगी नहीं होती है. वो बस देख के एक बंदा थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है कि यार स्टूडियो बनाने में इतने करोड़ों लग गए तो मैं कहाँ से बनाऊंगा. अरे वो स्टूडियो बना रहे हैं. स्टूडियो ऑब्वियसली बनाने में करोड़ों लगते हैं क्योंकि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. बट आपका सिर्फ एक गोल है, मेरे कमरे के अंदर साउंड अकूस्टिकली प्लेजेंट हो. तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है. ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करना, जैसे वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करना. जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूं, मेरी वॉइस इतनी बुरी भी नहीं आ रही आपको, राइट? मेरे पीछे एक वुडन पैनल लगा हुआ है, मैं एक नॉर्मल माइक यूज कर रहा हूं, करेक्ट? मैंने अपना डोर भी खुला रखा हुआ है, मैंने डोर भी नहीं बंद किया है. सो सिंपल अकूस्टिक ट्रीटमेंट एक्चुअली गोज अ लॉन्ग वे. वो तो जरूरत पड़ेगी आपको, और कुछ नहीं करना. यूट्यूब पे इतने वीडियोज हैं, लकड़ी का एक फ्रेम बनाया, अंदर रॉकवूल डाला, पेंटिंग की तरह टांग दिया. सिंपल एज दैट. ठीक है, एकदम आपको कैलकुलेट करके कि इस फ्रीक्वेंसी को टैकल करना है, यहां करना है, वो करना है. देखिए आप प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है और अभी वहां तक बात पहुंची भी नहीं है. जब तक खुद वो डिफरेंस सुन ही नहीं पा रहे, आप जब क्रिटिकली एनालाइज ही नहीं कर पा रहे, जब आपके कान अभी तक ट्रेंड ही नहीं है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि आपके कमरे में किसकी कमी है या किसकी खामी है, राइट? तो आप पहले एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओ कि हाँ मेरे कमरे में अब गंदी रिफ्लेक्शंस नहीं है. कम से कम मेरे कमरे में बेस बिल्डअप नहीं हो रहा क्योंकि मैंने 2 कॉर्नर्स में कम से कम बेस ट्रैप लगा दिया है, कारपेट लगा दिया है, राइट? उसके बाद फिर आप जैसे जैसे मिक्सिंग सीखेंगे या जैसे जैसे आप सीखेंगे म्यूजिक को क्रिटिकली कैसे एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग कैसे करते हैं, आप वैसे वैसे समझेंगे कि यार मेरे कमरे में, मैं जब इनके स्टूडियो में गया था यहाँ पे ये साउंड नहीं आ रही थी, मेरे कमरे में ये साउंड डबल होके आ रही है, या ये साउंड खा रही है, या यहाँ पे एक डिप आ रहा है, राइट? वो आप समझ पाओगे. सो टेक इट स्लो, धीरे धीरे करो, बट हौसला मत छोड़ो. ये बहुत टाइम लगता है इस इंडस्ट्री में कुछ भी समझने के लिए और अच्छी तरह से जमने के लिए. बट क्योंकि टाइम लगता है, देयर इज नेवर अ बेटर टाइम टू स्टार्ट देन नाउ. यू स्टार्ट राइट नाउ. आराम से, कुछ नहीं है, कारपेंटर बुला के फ्रेम बना के टांगो, शुरू करो. जो बजट है उसकी इक्विपमेंट लो, राइट? कोई बात नहीं है. तो क्या हुआ अगर अभी नॉयमन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, श्योर पे काम करो, कोई इशू नहीं है. मैंने भी पहला माइक मेरा नॉयमन नहीं था, सैमसंग था, 8000 का एक माइक था, वहां से मैंने भी वहीं से शुरू किया है. पर शुरू तो करो, आगे तो चलो, राइट सर, राइट? राइट सर, या थैंक यू सर, थैंक यू. मोस्ट वेलकम. ओके, सो सुनंदा का जो क्वेश्चन रह गया था, उन्होंने पूछा है आपका पूरा कोर्स यही फ्रंट रो से प्रोवाइड करेंगे? सी, आई एम ओनली टीचिंग अ वेरी बेसिक एबल्टन बेसिक कोर्स. आई मे बी टीचिंग एन एडवांस एबल्टन कोर्स, म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स soon, but as of now it is only a basic course. So for that you can definitely take front row. I myself have an Instagram page. It's called Mix by Mukul, one word. I'll write it down over there. You can follow me. वहाँ पे मैं intermediate से लेके advanced tips and tricks and tutorials देता हूँ. तो अगर आप beginner level से थोड़ा ऊपर उठ के आ चुके हैं और अगर आपको engineering और music production और mixing and mastering में थोड़े से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जो यूजुअली आपको कोर्सेज में भी नहीं मिलते हैं, देन यू कैन फॉलो मी. एंड आई ऑल्सो गो लाइव फ्रॉम माई ओन पेज अ लॉट ऑफ टाइम्स विद अ लॉट ऑफ गेस्ट्स. तो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं कुछ. बट एज ऑफ नाउ सिर्फ एक बिगिनर कोर्स है. यू कैन डेफिनेटली डू दैट. इट्स अ 2 month course, 2 classes a week, and more information is on the page. You can check out the page on the Front Row website. Sir, one last thing, sorry. I wanted, sir, sound designing का जो कोर्स है वो भी एडवांस्ड में है शायद, because I have not done that and I want to do it. अगर आपके पेज पे वो भी अवेलेबल है क्या, मैं देख सकता हूँ? because I currently it's not in front row. मैंने पूछा था उनसे. देखिए साउंड डिजाइन तो आई डोंट थिंक पूरे इंडिया में कहीं पे आपको मिलेगा. साउंड डिजाइन एक बहुत पिन पॉइंटेड कोर्स होता है. साउंड डिजाइन के लिए आप बर्कली ऑनलाइन देख सकते हैं, MI ऑनलाइन देख सकते हैं, म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट. बिकॉज साउंड डिज़ाइन में बहुत कुछ आ जाता है. फॉर एग्जांपल फिल्म का साउंड डिज़ाइन करना चाहते हैं या सिंथेसिस साउंड डिज़ाइन करना चाहते हैं, राइट? तो
ये थोड़ा हाई लेवल कोर्स है, मतलब इसके लिए आई थिंक आपको बेसिक इंजीनियरिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके बिना आप ये कोर्स कर नहीं पाएंगे। ओके ओके सर साउंड डिजाइनिंग में क्या क्या और आता है? साउंड डिजाइनिंग में एग्जैक्टली मतलब फिल्म मूवी मेकिंग का जो बैकग्राउंड साउंड है वो आएगा, फिर ऑडियो इंजीनियरिंग का जो वो है, ऑडियो का जो नहीं, साउंड डिजाइन अलग होता है, कॉम्पोजिशन अलग होता है। साउंड डिजाइन फॉर एग्जांपल जैसे वीडियो गेम में आपकी जो मेन्यू की ऑप्शंस हैं, या अगर आप कोई फिल्म में भी होता है, बेसिकली एक साउंड ऐसी डिजाइन करना जो नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एलियन मूवी बना रहे हैं, अब मुझे कुछ ऐसी मूवी बनानी है जो ऐसी साउंड बनानी है जो शायद एलियन लगे, ताकि ऐसा लगे कि वो कहीं नॉर्मल नेचुरल दुनिया में नहीं सुनाई देती है। या फॉर एग्जांपल आप साउंड डिज़ाइन करना चाहते हैं सिंथेसिस के लिए, म्यूज़िक के लिए, कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना चाहता हूँ अपने सिंथेसाइजर पे, उसे साउंड डिज़ाइन कहते हैं। टू डिज़ाइन अ साउंड फॉर अ पर्पस, इसका मतलब ये नहीं है दैट इट इज़ म्यूजिक कॉम्पोजिशन। साउंड डिज़ाइन इज़ अ पार्ट of a bigger picture. Exactly, like somebody said, like the lightsaber sound from Star Wars, that is sound design. That is not composition. That is not Foley. That is sound design. Whereas Foley is footstep की आवाज़ डालना, बूंदों की आवाज़ डालना, कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो सुनाई भी देना चाहिए, वैसी आवाज़ें डालना, उसे कहते हैं साउंड फोली या साउंड इफेक्ट्स। बट साउंड डिज़ाइन इज समथिंग जो जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ऑप्शंस खुल जाती हैं, एंड मोस्टली it tends to work around fantasy productions, yeah, it tends to work around sci-fi fictional productions. There is sound design in non sci-fi also, but very rarely. It is mostly to कि जो वीडियो गेम की मेन्यू ऑप्शंस है वहां तक आके रुक जाता है, उसके बाद तो फिर वही साउंड्स होंगी जो हमने सुनी है। सो साउंड डिज़ाइन इज़ अ वेरी वेरी पिन पॉइंटेड कोर्स। इट डिपेंड्स ऑन आप म्यूजिक में साउंड डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिल्म में साउंड डिज़ाइन करना चाहते हैं। म्यूजिक का साउंड डिज़ाइन अलग होता है, फिल्म का साउंड डिज़ाइन अलग होता है। ऑब्वियसली आप जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते हैं, आप एक स्किल को दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको दोनों सीखना पड़ेगा। हेलो, हाय प्रशांत। हेलो सर, मेरा एक सुनंदा, आई एम सो सॉरी, आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं एंटरटेन कर सकता। आई हैव टू गिव एवरीवन एल्स अ चांस। सर मेरा सवाल था, can I just add? आप टाइप कर दीजिए, मैं बीच में जवाब दे दूंगा। हाँ जी प्रशांत। सर मेरा ये सवाल था कि जो आपने अभी बोला था क्रिटिकल लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और वो स्किल धीरे धीरे आती है, तो मैं ये सोच रहा था कि क्रिटिकल लिसनिंग अगर करनी है तो इसका तरीका क्या है, इसे एक्चुअली करते कैसे है, क्रिटिकल लिसनिंग ही कैसे करना है? देखिए, क्रिटिकल लिसनिंग के कोर्सेज होते हैं जो अगेन इंडिया में थोड़े कम है, एंड आपको बर्कली जैसी साइट्स पे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। हाउएवर मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ जिससे कहते हैं puremix.net या .com। एक सेकंड, जस्ट डबल चेक दैट। ओके सर। आप प्योरमिक्स पे जाके क्रिटिकल लिसनिंग का वहाँ पे फ्री के क्रिटिकल लिसनिंग रिसोर्सेज हैं। हाँ, puremix.net। ओके, तो आप puremix.net पे एक मेंबरशिप ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और यू कैन इवन गो फॉर ईयर ट्रेनिंग। ईयर ट्रेनिंग के एप्स होते हैं, आप अपने स्मार्टफोन में ईयर ट्रेनिंग एप्स डाल सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्रिटिकल लिसनिंग का एक कोर्स है बर्कली में, म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट में, आई थिंक डबस्पॉट में भी था, बट डबस्पॉट अब बंद हो गया है। तो क्रिटिकल लिसनिंग के आप कोर्सेज वहाँ भी कर सकते हैं। एंड इन जनरल क्रिटिकल लिसनिंग इज़ अ वेरी वेरी अगेन इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड। तो ट्राई एंड फाइंड अ कोर्स दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर यू, जिस टाइप का म्यूजिक आप बनाना चाहते हैं, राइट? तो सर मतलब जो जिस तरीके का मैं सॉन्ग बनाना चाहता हूँ, और मतलब हर जेनरे का जो सॉन्ग है उस हर जेनरे के लिए अलग अलग क्रिटिकल लिसनिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं? नहीं, हर जॉनरा के लिए तो नहीं, बट मोस्टली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बर्कली से कर रहे हैं तो उनकी क्रिटिकल लिसनिंग मोर और लेस जैज, ब्लूज, रॉक, फंक, क्लासिकल, इनके लिए अच्छी है। अगर आप डब स्पॉट से कर रहे हैं या अगर आप बीट फैक्ट्री से कर रहे हैं तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के लिए बना होगा, राइट? तो आपके स्कूल पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा स्कूल चूज कर रहे हैं। जैसे बर्कली इज बेस्ट नोन फॉर जैज एंड क्लासिकल, राइट? तो अगर आप जैज या क्लासिकल सीखना चाहते हैं तो बर्कली से अच्छा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली दैट्स जूलियार्ड, बट जूलियार्ड के आई थिंक ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप फॉर एग्जांपल रॉक म्यूजिक या मेटल या कुछ ऐसे करना चाहते हैं तो म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट इज वेरी गुड।
राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल कंट्री म्यूजिक या फोक म्यूजिक सीखना चाहते हैं, फुल सेल इज वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्कूल्स में भी देखिए किस टाइप के स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आइडिया मिलेगा कि is that school best for you or not. Sometimes, most times, electronic music producers के लिए Berkeley is a little bit of an overkill. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन के और भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जिनका और भी ज़्यादा अच्छा करिकुलम है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एक है PML प्रोडक्शन, आई थिंक इंस्टाग्राम पे पेज है उनका, PML। हाँ जी, ओके। I will just look for it and I will confirm that also. उनके भी अपने courses हैं which are dedicated for electronic music production. So you can definitely take a look in that. सर आपने बर्कली म्यूजिशियन इंस्टीट्यूट और क्या नाम बताए थे? फुल सेल। फुल सेल जैसे सेल करते हैं ना? ओके, या फुल सेल। और एक अभी बी से कुछ आपने बताया था जो कह रहे थे आप बंद हो गया, पता नहीं क्या नाम। डब स्पॉट। ओके डब स्पॉट एक बार चेक कर लेना बंद हुआ है कि नहीं, बट लास्ट आई चेक्ड, आई थिंक लास्ट उसका लंदन में एक बचा था, आई थिंक वो बंद हो गया है। बट एज आई सेड गाइज, ये सब आपके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। आपको पहले इन सब में करने से पहले एक सिंपल बिगिनर कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि आपका एक जो डर है या जो, क्योंकि ये कोर्सेज जो हैं अज्यूम करेंगे कि आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है। अगर आपको नहीं आता और आप ऐसे ही कोर्स में आ जाएंगे, एक तो महंगे भी हैं कोर्सेज, राइट। आपने कोर्स ले लिया, वापस आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, अब आपको फिर जल्दबाजी में सीखना पड़ेगा, तो आप अच्छे से सीखेंगे नहीं। तो एक बार एक बिगिनर कोर्स कर लीजिए। बिगिनर कोर्स करने के बाद आपको जो है, आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स ढूंढिए। ओके सर, ठीक है सर। अगर आप 3 महीने का कोर्स दे दे या ब्रिज कोर्स कुछ दे दे हमारे लिए पर्सनली, या कुछ अगर ब्रिज कोर्स मिल जाए तो अच्छा होता है। ब्रिज कोर्स नहीं, ब्रिज कोर्स अभी तो नहीं है। एज आई सेड, अभी तो मैं सिर्फ बिगिनर कोर्स दे रहा हूँ, बट वेरी सून आई विल बी, आई एम लुकिंग इनटू एडवांस कोर्सेज, इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्सेज। एंड एज फार एज अ मिक्स्ड बैग ऑफ स्किल्स इज कंसर्न्ड, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी। आई अपलोड वेरी रेगुलरली, एंड वहाँ पे मैं बहुत लोगों से उनके इनपुट लेके उनके हिसाब से म्यूजिक बनाता हूँ, सॉरी ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। एंड as far as this is concerned, मैं आपको एक मिनट, एक बहुत अच्छा स्कूल है, I will keep looking for it. Why don't we go on to the next person? Ramesh Malik. Hi, man. Okay. Ramesh, are you there? All right, he's not there. Sam Dane, you got a question, man? Okay. Moving on. Pawan Diolia. Hello, sir. Hi, how are you? Sir, I'm good. Tell me. सर वही जैसे कि हम लोग को, मैं सिंगर भी हूँ, मैं पियानो गिटार भी बजाता हूँ और मैं क्लासेस वगैरह भी लेता हूँ, तो वही होता है बहुत टाइम तक ईयरफोन्स पहने रहना पड़ता है। तो प्रोडक्शन भी अभी भी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया, तो बहुत टाइम तक ईयरफोन्स पहनने की वजह से प्रोड्यूस करने के टाइम पर कानों का ख्याल कैसे रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले आप जब म्यूजिक बनाएं तो इतने वॉल्यूम पे बनाएं जिसके साथ आप बात कर पाएं। फर्स्ट ऑफ, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा, आई अप्रिशिएट दैट। आप ऐसे लेवल पे बनाएं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वॉल्यूम पे होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे सडनली कोई कमरे में आके नॉर्मल आवाज में बात करे तो आपको उनकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। आपको म्यूजिक बंद करने की जरूरत ना पड़े, या ठीक है बंद कर लीजिए, बट एटलीस्ट उनको चीखने की या चिल्लाने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो इतने लेवल पे म्यूजिक बनाना चाहिए और इतने ही लेवल पे म्यूजिक मिक्स भी करना चाहिए। ऑब्वियसली बीच बीच में
हुआ 10 मिनट के लिए देखने के लिए यार पंच आ रहा है कि नहीं, या अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप 10 मिनट के लिए म्यूजिक को लाउड करके एंजॉय कर सकते हैं, बट देन वापस जब आप काम पे आ जाएं तो उसको दोबारा आप टॉकिंग लेवल पे ले आइए, ठीक है। सेकेंडली, अपना एकदम सडन एक्सीडेंटल बर्स्ट से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक कोई प्लग इन लोड करते हैं और आप कीज पे कॉर्ड बजाते हैं और सडनली बहुत लाउड हो जाता है और आपको पता नहीं था यार ये इतना लाउड हो गया, गलती हो गई, उस केस के लिए आप अपने मास्टर ट्रैक पे हमेशा एक लिमिटर लगा के रखिए, उसे अपने डिफॉल्ट सेट में सेव कर दीजिए, ताकि अगर आप खोल के भूल भी गए लिमिटर लगाना तो आपके डिफॉल्ट सेट के साथ खुल जाना चाहिए, या डिफॉल्ट सेशन या डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ खुल जाना चाहिए। उस लिमिटर में आप लेवल -6 dB पे सेट करिए, तो अगर कोई एक्सीडेंटल बर्स्ट भी हो जाता है, या अगर कोई केबल भी खींच देता है गलती से, या फॉर एनी रीजन, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं, फॉर एनी रीजन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एटलीस्ट आपके कान और आपकी इक्विपमेंट बचे रहेंगे, राइट। सो दैट इज वन ग्रेट टेक्निक कि हमेशा लिमिटर लगा के रखें। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब भी काम करें, एंजॉय नहीं, एंजॉय कर रहे हैं तो फुल म्यूजिक चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली आप एंजॉय कैसे करेंगे म्यूजिक, आप म्यूजिक बना क्यों रहे, एंजॉय करने के लिए बना रहे हो, राइट। जब एंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, चलाओ लाउड, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली उसकी भी एक लिमिट होती है, वो आपको पता चल जाएगा, जब कानों में दर्द होगी कम कर देना, राइट। बट जब आप म्यूजिक बना रहे हैं, व्हाइल यू वर्किंग, तब आप कॉन्वर्जेशनल लेवल पे काम करें, कि इतना हो कि कोई भी आके अगर बात भी करे तो पता चल जाए कि किसी ने कुछ बोला है, यू अंडरस्टैंड, बस। और बेसिक जब हम लिसनिंग पे काम करते हैं लर्न करने के लिए, लाइक गाने सुनने के लिए या फिर चीजें समझने के लिए, तो उस टाइम पर ईयरफोन्स का ज्यादा यूज किया जाए या फिर स्पीकर्स पे सुना जाए? देखिए, ईयरफोन का भी लंबा ड्यूरेशन बढ़ जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कभी भी हेडफोन्स और ईयरफोन्स के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ईयरफोन्स और हेडफोन्स जो है एक आइसोलेटेड स्टेरियो इमेज देते हैं। जो राइट स्पीकर में आ रहा है वो राइट कान को ही सुनाई देगा, और जो लेफ्ट स्पीकर पे आ रहा है वो लेफ्ट कान को ही सुनाई देगा। जबकि जब आप स्पीकर्स में सुनते हैं, राइट स्पीकर से जो आ रहा है वो राइट कान में तो आ ही रहा है, बट वो लेफ्ट कान को भी सुनाई देगा, ठीक है। इसे स्टेरियो क्रॉसटॉक कहते हैं। तो स्पीकर्स और म्यूजिक जब मिक्स होता है, जब मैं म्यूजिक मिक्स करता हूं एज ए मिक्स इंजीनियर, और कोई भी प्रोफेशनल जब म्यूजिक बनाता है वो स्पीकर्स पे बनाता है, वो स्पीकर्स के बेस्ट रिस्पॉन्स के लिए बनाता है। एंड स्पीकर्स इज ऑल्सो द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ लिसनिंग, क्योंकि आप एक डिस्टेंस पे रख के साउंड सोर्स को म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, एकदम ईयरड्रम के पास नहीं रख रहे हैं, राइट। सो एक तो आइसोलेटेड स्टेरियो इमेज नहीं आती, और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आप सुन रहे हैं, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके कान बचते हैं। हेडफोन यूसेज से कानों में बहुत ज्यादा हार्म होता है, ठीक है। और अगर आप हेडफोन्स यूज भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पीकर्स का बजट नहीं है, आप हेडफोन्स पे काम कर रहे हैं, तो उसका लेवल इतना कम रखिए कि अगेन अगर कोई आके आपको कुछ बोले तो आपको म्यूजिक चलते हुए से सुनाई देना चाहिए कि किसी ने आके कुछ बोला है। क्लियरली क्या सुनाई दिया ये ना सुनाई दे, बट कम से कम पता चल जाए कि किसी ने आपका नाम पुकारा है, आपको बुलाया है, राइट। कानों का बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि अगर कान एक ऐसी चीज है, अगर डिग्रेड हो गई, कुछ भी करके, कितने पैसे भी फेंक के, वो दोबारा वापस नहीं आती है। आप कोई सर्जरी नहीं करा सकते कि आपकी हियरिंग वापस आ जाए। एक बार गई तो गई। कानों की यही प्रॉब्लम है कि अगर हियरिंग कम हो गई, आपकी कैपेसिटी कम हो गई, वो यहीं रहेगी। अब आपको यहीं से सीखना पड़ेगा। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, एंड एक मतलब तमीजदार लेवल पे आप सुनिए, एकदम लाउड पे काम नहीं करना चाहिए। बट जब आप एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, पार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए हुआ, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार आप क्लब चले गए या कोई लाइव शो देखने चले गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली एक स्पीकर के एकदम पास आके मत खड़े हो जाइए, stay away from it, but enjoy it. And last question, sir, while producing and while mixing, stereo पे हमें ज़्यादा टाइम करना चाहिए सारी चीजें या फिर मोनो पर? That's again, तो उसको अपन चेंज करेंगे. That's again a very very good question, and it's actually an intermediate advanced level question. मतलब आप ऑलरेडी मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी हुई है। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जब तक आप सीख रहे हैं, आप सारे मिक्सेस अपने मोनो पे करिए, क्योंकि जब आप मोनो पे मिक्स करते हैं, एंड आप कहेंगे कि नहीं पर मैं क्लाइंट को मोनो मिक्स पकड़ा के पूरे पैसे कैसे ले लूँ, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, कोई बात नहीं है। जब आप मोनो में मिक्स करते हैं, आप एक के ऊपर एक चीज़ें स्टैक कर रहे हैं,
राइट? मतलब आपको स्टेरियो विथ की अभी लग्जरी नहीं मिल रही है, राइट? कि आपने कॉन्गा यहां कर दिया, तबला यहां कर दिया, बीच में जगह मिल रही है, वहां पे वोकल्स डाल दो, कोई बात नहीं। पहली बात, जब कोई नॉर्मल इंसान म्यूजिक सुनता है, वो हमारी तरह, हम तो कॉन्सर्स हैं, हमारी तरह डेस्क पे लेफ्ट स्पीकर मेरे यहाँ, राइट स्पीकर मेरे यहाँ, 60 डिग्री का एंगल, और आंखें बंद करके मैं पूरे ध्यान से म्यूजिक सुन रहा हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं। 99% लिसनर्स ऐसे म्यूजिक नहीं सुनते हैं। 90% लिसनर्स म्यूजिक गाने में या ईयरफोन्स में सुनते हैं, ठीक है? गाने बोल रहा हूं, गाड़ी में या ईयरफोन्स में सुनते हैं। गाड़ी में क्या होता है, आप एक साइड पे बैठे हैं, स्टेरियो इमेज तो वैसी चली गई। या लोग जब घर में म्यूजिक सुनते हैं तो उनका म्यूजिक सिस्टम कमरे के किसी कोने में पड़ा होता है, राइट? और स्टेरियो इमेज खत्म हो गई। तो जब तक कोने से दो स्पीकर्स इतने पास पास पड़े हैं, कोने से जब तक आप तक आवाज आती है, वो अकूस्टिकली मोनो हो चुकी है, वो अब स्टेरियो नहीं बची। वो स्टेरियो इफेक्ट उनको नहीं आएगा, उनको मोनो इफेक्ट ही आएगा, क्योंकि स्पीकर अब इतनी दूर है कि लेफ्ट और राइट स्पीकर का डिस्टेंस अब इतना कम हो गया है, वो नेग्लिजिबल हो चुका है, राइट? तो उन तक जो आवाज आ रही है वो मोनो आवाज आ रही है, राइट? तो अगर आपने स्टेरियो मिक्स भी बनाया है, एट द एंड ऑफ द डे सुनाई तो उसको मोनो ही दे रहा है। और अगर वो स्टेरियो मिक्स स्टेरियो में अच्छा काम कर रहा है पर मोनो सिनारियो में वो कट थ्रू नहीं कर पा रहा, तो फिर आपका मिक्स पीछे रह जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जब तक आप स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करते वक्त पहले मोनो मिक्सिंग को परफेक्ट करिए। बाय परफेक्ट आई मीन एज गुड एज यू कैन गेट, ठीक है ना? कि आपको खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाए कि अब तो मैं मोनो मिक्सेस बढ़िया से निकाल सकता हूं, राइट? एंड एज फार एज यू आर सेइंग कि मैं क्लाइंट से पेमेंट ले रहा हूं, मैं मोनो मिक्स कैसे दे दूं, लेट मी टेल यू समथिंग। सम ऑफ द बिगेस्ट रेडियो मिक्सेस एंड द बिगेस्ट आर्टिस्ट्स इन द वर्ल्ड आर एक्चुअली मिक्स्ड इन मोनो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल। आप वीकेंड का कोई भी गाना सुनो, उसका मोनो का बटन ऑन ऑफ करके देखो अपने साउंड कार्ड पे या अपने DAW पे, वो सारा मोनो में है। आप मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनो, स्क्रिलेक्स का कोई भी गाना सुनो, मोस्टली मोनो में होता है। और अगर स्टेरियो स्प्रेड है भी, तो जो स्टेरियो स्प्रेड है वो इक्वल है, मतलब जो चीज लेफ्ट पे है वही चीज राइट पे भी है। आपको एक स्टेरियो स्टेज नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल, जब आप जिम मॉरिसन या डोर्स चलाते हैं तो ड्रम्स यहाँ है और गिटार्स यहाँ पे है, कीबोर्ड यहाँ पे है एंड बेस यहाँ पे है, यू नो, एक सोनिक स्टेज बनाई हुई है। यहाँ जब आप जैज म्यूजिक सुनते हैं, सैक्सोफोन यहाँ से आ रहा है, क्वायर यहाँ से आ रहा है, ऐसे नहीं है। अगर स्टेरियो इमेज बन भी रही है तो वो एक ही सिंथ को स्टेरियो वाइड किया हुआ है। यू गेट इट? इट्स नॉट लाइक एक चीज अलग यहाँ है, एक चीज अलग यहाँ है, ऐसे नहीं है। सो इट इज मोर, इट इज स्टिल अ सेंटर इमेज। लेफ्ट राइट इक्वल है, तो अभी भी वो सेंटर इमेज ही है, बस उनके लिए जो हेडफोन से सुन रहे हैं उनके लिए फैल जाएगा ना। मोस्ट ऑफ दीज बिलबोर्ड चार्टिंग आर्टिस्ट्स हैव सेंटर हेवी मिक्सेस बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, क्योंकि उनको पता है कि उनके गाने कहीं भी बज सकते हैं, और उनके गाने कहीं भी बजें, कहीं भी प्ले हो, उनका मिक्स नहीं बिगड़ना चाहिए। एंड इवन इफ दे हैव टू sacrifice their stereo image for that, they are going to do that in favor of good mix translation. कि यार स्टेरियो इमेज छोड़ो, हमें उसकी चिंता नहीं है, पर आज कोई बंदा अपनी घिसी पिटी स्पीकर में भी चलाए गाना, या 10 लाख के बोस के स्पीकर पे चलाए, आई डोंट केयर कहाँ चल रहा है, ट्रांसलेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो सेम साउंड होनी चाहिए जो इस स्पीकर पे आ रही है, लेवल और बैलेंस वही होना चाहिए, विच इज अ ग्रेट मिक्स बाय द वे। सो स्टार्ट इन मोनो, एंड जब मोनो में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब मुझे पता है कि साउंड और म्यूजिक ट्रांसलेशन को कैसे इफेक्टिवली एक इस स्पीकर से, हारमन से, JBL से, बोस से, यू नो अलीसस से, या एल्टेक लैंसिंग से, या आईबॉल से, या जितने भी टाइप के स्पीकर्स हैं, अब कहीं भी ये गाना चला दो, एक बैलेंस बना रहेगा, एक कंसिस्टेंसी बनती है। जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप स्टेरियो में आइए, थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए कि आज चलो गिटार के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, things like that, right? Okay, sir. Thank you so much. Most welcome. That was a very very good question and a albeit intermediate advanced question. तो अगर आपको नहीं समझ आया मैंने अभी क्या बोला है, don't worry, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस चीज का महत्व आ जाएगा। All right, moving on to Kaustubh Kulkarni. Hello, sir. Good evening.
Good evening. So my question is basically I can like record the music in different tracks in the DAW, but when I mix and just export it right in .wav or .mp3, that time it don't sounds that authentic. Like sometimes that like whatever my vocals are there, right, they get carried away by the different music of piano and the guitars. Like I'm sorry Kaustubh, I'm so sorry Kaustubh, एक बार प्लीज आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए, आवाज आपकी कट गई थी. Okay, so can you hear me now properly? Yeah, I can hear you now. So whenever I like I can record my music in a different track using like different instrument like piano, guitar, and vocals. But when I like just bounce it right and just export it into .wav and mp3 right, that time it don't sound that authentic like the way we hear the actual production music. So how I can make the vocals to sound more clear and not get mixed between the different sounds. So is it the recording issue or is it the mixing? It is everything. It is everything. Let's assume कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं and I'm pretty sure आप हैं या आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपने बहुत अच्छा गाया, and let's assume कि आपने बहुत अच्छे माइक पे भी गाया. ठीक है, आपने बहुत महंगा माइक खरीदा, आपने बहुत महंगे माइक पे भी गा लिया. अब प्रॉब्लम आती है कहाँ बैठ के आपने गाया, अपने बेडरूम में या स्टूडियो में. बेडरूम में गाया है तो फिर तो कभी भी नहीं आने वाला क्योंकि सारी रिफ्लेक्शन आ गई है. अब मान के चलते हैं आपने स्टूडियो में भी गा दिया, ठीक है, मतलब आपने अच्छा गाया, अच्छे माइक पे गाया, अच्छे स्टूडियो में गाया. अब आपका इंजीनियर कौन था? क्या उसने सही हेडरूम रख के आपको रिकॉर्ड किया? क्या उसने आपको सही प्रीएम्प पे रिकॉर्ड किया? क्या उसकी इंजीनियरिंग स्किल्स अच्छी थी? क्या आप माइक से ऐसे चिपक के तो नहीं गा गए, या आपने अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया था? राइट, ये सब मैटर करता है. उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आते हैं मिक्सिंग पे. आपका मिक्स इंजीनियर कैसा था, उसने कितना अच्छा आपकी आवाज़ को ट्रीट किया है, म्यूजिक के साथ कैसे ब्लेंड किया है. एंड देन फाइनली मास्टर पे आते हैं. एक बार यहां तक अगर सब कुछ अच्छा हो तो मास्टर अपने आप बढ़िया निकलता है. बट यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द लास्ट स्टेप. अगर आपने अच्छा नहीं गाया तो महंगा माइक कुछ नहीं कर पाएगा. अगर महंगा माइक यूज किया है, कमरा गंदा है, स्टूडियो में नहीं गाया, तो महंगा माइक कुछ नहीं कर पाएगा. अगर क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग रूम बुरा था तो इंजीनियरिंग क्या कर लेगी. अगर इंजीनियर आपका नहीं अच्छा था तो मिक्स मास्टर इंजीनियर क्या कर लेगा. यू अंडरस्टैंड. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द लास्ट. ऑब्वियसली जो मिक्स इंजीनियर का जो काम है, कभी कभार होता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ रह गई थी गुंजाइश. होता है, बिल्कुल होता है. कभी कभार घर पे रिकॉर्डिंग कर, जैसे स्पेशली इस पैंडेमिक में बहुत आर्टिस्ट स्टूडियो नहीं जा पाए, तो मी एज अ मिक्स इंजीनियर मुझे बहुत बार ऐसी रिकॉर्डिंग्स के साथ काम करना पड़ा जो घर पे रिकॉर्ड हुई हैं. अब वहाँ पे मेरा एक एक्सपर्टीज़ है कि मुझे पता है यार यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, इसको कम कैसे करें, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है. दैट्स करेक्ट. बट उसका आउटपुट कभी भी वो आउटपुट नहीं आएगा जो स्टूडियो आउटपुट का आएगा. सो आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी परफॉर्मेंस. ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आप जितना ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. एंड बाय दैट आई मीन, जब आप लाइव गाते हैं वो एक अलग परफॉर्मेंस होती है. लाइव परफॉर्मेंस को कभी भी स्टूडियो परफॉर्मेंस की तरह मत समझिए. स्टूडियो में आके पूरी पिक्चर बदल जाती है. स्टूडियो में एकदम सन साइलेंस होता है, आपको अपनी सांसें सुनाई देती हैं. आप इतना सा भी हिलते हैं ना, ऐसे भी करेंगे आपको उंगली की आवाज़ सुनाई देगी. और वहाँ पे आके आप एंग्शियस हो सकते हैं. आपको जब अपनी आवाज़ इतनी क्लियरली अपने कान में सुनाई देगी, एक एक गलती सुनाई देगी आपको. आप अगर 4 सेंट से भी फ्लैट चले जाएंगे आपको सुनाई देगी और वो आपका कॉन्फिडेंस उठा के खिड़की के बाहर फेंकेगी. तो स्टूडियो में आके बहुत कुछ बदल जाता है. स्टूडियो परफॉर्मेंस एक बहुत अलग चीज़ होती है, लाइव परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ होती है. अब जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि स्टूडियो परफॉर्मेंस में कैसे गाना है. राइट. एंड एज आई सेड, बहुत ज़्यादा मिक्स मास्टर इंजीनियर के हाथ में होता है. आफ्टर ऑब्वियसली अज्यूम करके कि आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई थी और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई थी, उसके बाद फिर मिक्स मास्टरिंग इंजीनियर के हाथ में होता है कि वो उसको कितना अच्छा ब्लेंड करता है. बहुत बार मैंने देखा है कि रिकॉर्डिंग भी अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट क्योंकि मिक्स मास्टरिंग इंजीनियर का बजट टूट गया था तो वो किसी छोटी जगह पे भेजा और वहाँ से फिर जो गाना मिक्स होके आया वो बनी नहीं बात. तो उसके हाथ में भी बहुत होता है. तो आप जो पूछ रहे हैं वो एक मिक्सिंग स्किल है, अज्यूमिंग कि आपने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग दी है और आप बहुत अच्छे सिंगर हैं. तो डोंट वरी, आप या तो किसी मिक्स इंजीनियर के साथ बैठ के इंटर्नशिप कर लें या किसी मिक्स इंजीनियर के पास जाके आप उसको पेमेंट दे दीजिए कि यार मेरा गाना मिक्स कर दे, पर मुझे तेरे साथ बैठना है, मुझे देखना है तू क्या कर रहा है.
आप ये भी कर सकते हैं, बहुत लोग मेरे साथ करते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए मेरे साथ बैठिए, आपको भी पता चलेगा अगले गाने में कैसे इंप्रूव करना है। सो आप ये भी कर सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, राइट? So one question was asked by Devesh. I need to answer that since he asked right in the beginning. I want to make a serious career in music production and composition, and my target is Bollywood. So can you give me any tip? I can remember those things before entering Bollywood, before talking to any other musician like you. देखिए, सबसे पहले तो आपको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ेगा, या आप अपनी सिटी के म्यूजिक सर्कल में, वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में है, मुझे पता नहीं आप कौन सी सिटी में है। अगर आप दिल्ली में हैं, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, तो शायद, या चंडीगढ़ में है, तो शायद आपको एक ऐसा म्यूजिक सर्कल मिल जाए जहां से आपको बॉलीवुड का काम आ जाएगा। पर वहां पे भी, दिल्ली में भी रह के बॉलीवुड का काम बूंद बूंद गिरता है। असली बॉलीवुड का काम करना चाहते हैं तो आपको बॉम्बे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बॉलीवुड इज बॉम्बे, तो वहीं जाके आप काम करिए। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड, कोई छोटा सा कोर्स भी कर लीजिए, छोटा सा कोर्स करके इंटर्नशिप करिए बॉम्बे के किसी स्टूडियो में। बॉम्बे के किसी स्टूडियो में इंटर्नशिप करेंगे, वहां पे मेहनत करेंगे, तो बॉम्बे आपको अपने आप ऊपर उठाएगा। बॉम्बे मेहनती लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ता। एक बात पक्की है, अगर आप बॉम्बे जाके मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो बॉम्बे आपको अपने साथ लेके आगे चलेगा। एंड ये मेरे साथ भी हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। पर अगर आप मेहनत छोड़ देंगे, तो जैसे लाखों करोड़ों लोग बॉम्बे आके अपने सपने तोड़ देते हैं, बिल्कुल वही काम होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट करोगे तो बिल्कुल आगे पहुंचोगे। एंड जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, छोटा सा कोर्स करो, इंटर्नशिप ढूंढो, बिल्कुल मिलेगी। नहीं मिलती, 2 हफ्ते के लिए वहाँ चले जाओ, किसी ओयो रूम में रह लो, कोई बात नहीं, किसी फ्रेंड के साथ रह लो, कहीं किसी रिलेटिव के साथ रह लो। जगह जगह रोज हर एक स्टूडियो में एक मेल भेजो, जाके बेशक उनके दरवाजे पे खटका के बोल दो कि बेशक मुझे पहले 4 दिन चाय पिलानी पड़े, मैं पिला दूंगा, पर मुझे इंटर्नशिप चाहिए। बिल्कुल आपको मिलेगी। मोटिवेटेड लोगों को, एंथुसियास्टिक लोगों को हर कोई इंटर्नशिप देता है, मैं भी देता हूँ। ऑल द बेस्ट। Alright guys, I'm so sorry that I could not answer all of your questions, but I hope that the questions that I answered helped you in some way or the other. एंड ये होते रहेंगे कम्युनिटी लाइव सेशंस। तो अगर आप इस बार आपका क्वेश्चन नहीं आंसर हुआ, अगली बार ज़रूर आइए। मैं मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है, जो नाम मैंने इस बार बोले हैं मैं उनसे दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं जो नाम छोड़ गया हूं मैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? एंड मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन विजित से, बताइए। तो एक्सटर्नल प्लगइन्स कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए? एक्सटर्नल प्लगइन्स कुछ नहीं होता, एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, या मिक्सिंग हार्डवेयर होता है, या प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है। प्लगइन हमेशा और हमेशा सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए उसे प्लगइन कहते हैं, ठीक है? तो एक्सटर्नल प्लगइन्स नहीं बोलना, एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलना है। और ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है जो आपके गाने को सडनली पत्थर से सोना बना देगा, ठीक है? यूज करने के हाथ में होता है। मैं आपको बढ़िया मिक्स सिर्फ और सिर्फ एबल्टन की नेटिव इफेक्ट्स के साथ भी बना के दे सकता हूं, और मैं आपको बढ़िया मिक्स अपने एक्सटर्नल हार्डवेयर से भी बना के दे सकता हूं। फर्क पता है क्या होगा? एक्सटर्नल हार्डवेयर से जब मैं बनाऊंगा तो शायद मैं वो काम 4 घंटे में खत्म कर दूंगा, बट अगर मैं एबल्टन से बनाऊंगा तो शायद मुझे 16 घंटे लगें। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टाइम मुझे कम लगेगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो ऑलरेडी यहां है, बना हुआ है मेरे लिए, राइट? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका गाना बिना एक्सटर्नल हार्डवेयर या बिना महंगे हार्डवेयर के नहीं आपको अच्छा लग रहा, तो वो हार्डवेयर लगा के भी अच्छा नहीं हो जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं। मैं आपको बहुत सिंसियरली आपको एक बात बता रहा हूं, कभी भी आप जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज कभी भी अपना म्यूजिक एक मशीन के एहसान पे मत छोड़िए। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर म्यूजिक। आप अपने म्यूजिक का कत्ल कर रहे हैं। कभी भी अपना म्यूजिक एक मशीन के एहसान पे मत छोड़िए। आपका म्यूजिक आपके एहसान पे होना चाहिए, आपकी मेहनत के एहसान पे होना चाहिए। अगर वो साउंड नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, 4 दिन रुक के उसके ऊपर दोबारा बैठिए, आप बेटर होंगे। नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, 4 दिन के बाद भी नहीं आई तो कोई बात नहीं, गाना निकालिए, रिलीज करिए। क्या होगा? 4 लोग आके गालियां दे देंगे, देने दो यार, कोई बात नहीं। आपने आज अच्छा गाना लिखा है, कल आप इससे और भी अच्छा गाना लिखेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। आप आगे ही बढ़ते हैं। कोई अपना स्किल कम थोड़ा नहीं कर देता।
आपका स्किल तो बढ़ेगा ही ना आगे, राइट? तो रुकिए मत, डोंट वेट फॉर परफेक्शन. आप अगर एक ही गाने पे अटके हुए हैं कि एक साल में एक गाना निकल रहा है, आपको पता है हर रोज कितने गाने रिलीज होते हैं? लाखों में रिलीज होते हैं. और आप अगर साल में एक गाना रिलीज करेंगे तो क्या होगा? आपका कुछ भी नहीं होगा. आपको अपना लक बढ़ाना है, अपने लक के चांसेस बढ़ाने हैं, अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है. तो जितने गाने हो सके रिलीज करो. तो क्या हुआ? अंडर स्टैंडर्ड साउंड है तो क्या हुआ? बढ़ेंगे आगे, सब बढ़ेंगे, सब कुछ ठीक होगा आगे, राइट? तो डोंट वरी, अगर गाना अच्छा है, गाने पे भरोसा रखो. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती पर गाना लोगों को पसंद आ जाता है. कहीं लोग कहते हैं कि जो इंडियन ओशन का कंडीसा है उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं अच्छी, पर वो गाना ही उनको आगे लेके गया है. उसी गाने ने इंडियन ओशन को आगे उठाया, राइट? आप अगर इतने पुराने गाने 1940s 50s की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अगर आज से आप उनको कंपेयर करेंगे, वो तो बहुत ही हल्की और वीक रिकॉर्डिंग है. उसमें तो कोई पंच ही नहीं है, मजा ही नहीं आता. कभी कभार तो वो फट भी जाती है स्पीकर में, पर लोग अभी भी सुनते हैं ना, क्योंकि वो गाने अच्छे हैं. तो अगर आपका गाना अच्छा होगा, क्वालिटी बंदा भूल जाता है. इंसान भूल जाएगा कि यार चल क्वालिटी माफ, कोई बात नहीं, गाना तो अच्छा है, इतना अच्छा उसने सुर लिखा है, सुन लेते हैं, ठीक है? तो भरोसा रखो. डोंट लेट एक्सपेंसिव हार्डवेयर चेंज योर affect your confidence. Just go for it. ठीक है? All right, guys. Thank you so much. This is my time. And म्यूजिक कंपोजिशन और म्यूजिक प्रोडक्शन दोनों एक साथ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. हाँ, वो एक मोर और लेस एक ही चीज होती है आज की दुनिया में, आज के डेट में मोर और लेस एक ही चीज है वो. ठीक है? ठीक है सर. All right, all the best, Vijay. सर आपका सेकंड बैच कब स्टार्ट होगा, बिगिनर वाला? सेकंड बैच मेरा 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं जुलाई में. सो यू कैन सर्च द पेज ऑन फ्रंट रो. एक 4th जुलाई को शुरू होगा और एक 1st जुलाई को. यू कैन गो एंड साइन अप फॉर दैट. एंड एज आई सेड, मैं इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी देता हूँ. आपको अगर कोई क्वेश्चन है या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके गाने सुनूं, प्लीज़ कीप इन माइंड, बहुत लोग मुझे अपने गाने भेजते हैं तो मैं शायद थोड़ा टाइम लगाऊं, बट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. आप मेरे से वहाँ पे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सवालों का वहाँ पे जवाब दूँ. उसके अलावा मैं वहाँ पे एक बहुत यूज़फुल वीडियोस भी डालता हूँ, आप उसे भी देखिए. तबला, फॉर एग्जांपल, तबला मिक्सिंग कैसे करते हैं या एक ग्रामोफोन इफेक्ट कैसे लगाते हैं, सो एंड सो फोर्थ. सर आपका वो इंस्टाग्राम का वो यूजर नेम बता सकते हैं? मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ. ठीक है सर. सर एक्चुअली थैंक यू. I'm so sorry. I actually saw your Instagram page and I had a confusion from that itself. What? So actually, you told about the percussive build-up, right, for the deep house one, and you calculated it at about 167 for the rate. How did you end up with 167? Because I was searching for it for like a month and I'm just landing up to 160. So I don't know how that 167 came up. 167 was a triplet count. Yeah, like I searched it on web pages as well because I don't know the exact calculation. That's all right. 7 milliseconds up and down is fine. That's not the problem. You don't have to have a exact this thing. In fact, if I remember correctly, while I was making that video, it was not 167. It was actually 166 point something. That's the exact. That's actually the exact value, because first off, I'm working on a triplet on an odd number tempo. I think the tempo was set at 125. 125, yes. Right? It's an odd number tempo, and I'm trying to find a triplet on a 4x4. Do you understand the mathematical dilemma? एक तो odd number tempo, पर time signature है 4x4, which is even. ठीक है? Also a division of 4. उसके ऊपर 4x4 पे मैं triplet का time निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ. तो वो तो guaranteed integer amount आएगी, guaranteed decimal point पे आएगा. वो हो ही नहीं सकता कि आपको एक like rounded off value मिले, right? तो actually it was 166 point something, but मैंने for the purpose of this thing 167 किया था. and अगर आप अपना डिले टाइम या अगर आप ऐसे जो भी इफेक्ट्स हैं अगर आप मिलीसेकंड से डायल करना चाहते हैं तो यू कैन एक्चुअली लुक एट दिस साइट कॉल्ड BPM to MS कन्वर्टर. तो BPM to MS कैलकुलेटर सर्च करेंगे ना तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी tuneform.com. What, sir? Can I just take it down if possible? I'll just paste the link here, man. There you go. Yeah, thank you so much, sir. That means most welcome.
ठीक है, वैसे आप गूगल भी करेंगे ना, टेम्पो टू MS कैलकुलेटर या BPM टू MS कैलकुलेटर, MS इज मिली सेकेंड, आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है. Thank you so much, sir, and thank you for the Instagram videos. It actually helps. Most welcome. Thank you so much. All right, guys, this is my time. Thank you so much, and I shall see you next. Keep checking Front Row app. आपको update मिलता रहेगा. And yes, please do follow me. There's a lot more to learn where that came from. All the best, and see you next time. Bye bye. Bye, sir. Thank you, everyone. Most welcome. So it's very. Thank you. I'm signing out, Ishan. Yep. Thank you. Thank you, everyone. Bye.